Let's continue, children. The first and foremost item we have, children, is inventory. Then we have equity share capital. Next is plant and machinery. Then we have preference share capital, reserve for debentures payment, outstanding expenses. Proposed dividend, children, अब answer different है. Earlier it used to be different. Presently proposed dividend appears outside the balance sheet, but earlier this used to appear as an item of short term provisions. ऐसा क्यों किया? AS4 में ICAI ने चेंजेस किए. जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, देन आई टेल यू द होल स्टोरी. कंपनीज कैसे फ्रॉड किया करती थी, 25-30 साल 50 साल तक ऐसा चलता रहा. पीपल केम टू नोटिस दिस और इसको बैलेंस शीट के बाहर लात मार के निकाल दिया गया. Quickly completed. Just a couple of minutes more. Let's. So सबसे पहले we have inventory, children. Heading would be current assets. सब heading तो inventory खुद ही है. Equity share capital, children. Heading is shareholder funds. Sub heading share capital. Plant and machinery heading is non-current asset and sub heading is fixed tangible asset. जो इक्विटी शेयर कैपिटल का था एग्जैक्टली सेम विल गो फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हेडिंग शेयरहोल्डर फंड्स, सब हेडिंग शेयर कैपिटल. डिबेंचर रिडेम्पशन बाद में देखिए, रिजर्व वर्ड पहले पकड़िए. रिजर्व्स एंड सरप्लस सब हेडिंग वुड बी शेयरहोल्डर फंड्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज. चिल्ड्रन प्रपोज डिविडेंड के लिए आंसर लिखिए. Outside the balance sheet as a contingent liability. Outside the balance sheet as a contingent liability. Children, outside the balance sheet as a contingent liability. Okay? Yes. But आपने जो आंसर लिखा होगा that would have been current liability में short term provisions. ये पुराना आंसर है, अब ये नहीं चलता. Land and building, children, fixed tangible subheading, heading would be non-current asset. Current investments, current asset heading and subheading खुद ही है ये. Cash equivalent itself is a subheading, heading would be current assets. Short-term loan from or short-term loan to? From. Short-term borrowings में current liability में चला जाएगा. Had it been short-term loan to Zaveri Limited, it would be a Stellanti, short-term loans and advances. Public deposit, children, exactly like debentures होता है. The only difference is debentures में आपको securities pledge करनी पड़ती है, कोई जायदाद गिरवी रखनी पड़ती है, बैंक उसको वेरीफाई करता है, बैंक अप्रूवल देगा, तब आप सेबी से परमिशन ले पाएंगे, नहीं तो आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते. पब्लिक डिपॉजिट्स में कोई भी एसेट मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है. तो मेजॉरिटी पब्लिक कंपनीज को पब्लिक से इस तरह का डिपॉजिट लेने की परमिशन भी नहीं होती. दे मे डिफॉल्ट इन रीपेमेंट. ओके, चलिए. चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 इज विजिबल टू ऑल. टाइम अलॉटेड 3 minutes. क्विकली डू इट फास्ट. चलिए, लेट्स चेक. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, हेडिंग वुड बी करंट असेट्स. सब हेडिंग इटसेल्फ इज गिवन. शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को. अच्छा, कुछ चीजें सेम है. चलिए, शेयर कैपिटल, चिल्ड्रन, इधर इट इज इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों की हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स, सब हेडिंग इज शेयर कैपिटल. प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करंट एसेट एंड फिक्स्ड टैंजिबल. रिजर्व इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड्स वुड बी द हेडिंग एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इसका सब हेडिंग होगा. बिल्स पेबल में करंट लायबिलिटी एंड ट्रेड पेबल्स. Taxation, children, STP, short term provision is the subheading and heading would be CL, that is current liability. Then non-current asset, fixed tangible. Non-current asset subheading itself is given. Current asset subheading would be cash and cash equivalents. Current liability subheading would be trade payables. And children, non-current liability subheading would be long-term borrowings. Any queries to anybody?
नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 items are there. Time allotted 3 minutes. Quickly children, let's check. Building children non-current में fixed tangible. Investment में people may be confused कि सर ये सिक्योरिटी होगा क्या? नो चलन मार्केटेबल सिक्योरिटी हुआ तो लिख के आएगा. इन्वेस्टमेंट लिखा है तो ये नॉन करंट. इन्वेस्टमेंट इज द सब हेडिंग. हेडिंग इज नॉन करंट एसेट्स. स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स विल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स में इन्वेंट्री. स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में अंडरनीथ शेयरहोल्डर फंड्स यू विल सबट्रैक्ट. इक्विटी शेयर्स चिल्ड्रन शेयरहोल्डर फंड्स शेयर कैपिटल. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हमें प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट करना है. फॉर दैट इट इज कंपल्सरी टू सेव सम मनी आउट ऑफ प्रॉफिट चिल्ड्रन. तो इट इज नोन एज अ टाइप ऑफ रिजर्व. रिजर्व्स एंड सरप्लस इज द सब हेडिंग एंड हेडिंग इज शेयरहोल्डर फंड्स. डिबेंचर्स सबको पता है. नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अनपेड डिविडेंड इज आउटस्टैंडिंग डिविडेंड जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एग्जैक्टली सेम चीज है ये. इट्स करंट लायबिलिटी में OCL. ये नई चीज एक नजर आई. शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये होता है चिल्ड्रन बैलेंस शीट के बाहर का आइटम एज अ फुट नोट. कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी में आपको दिखाना होता है. जब हम एम्प्लॉइज को बोलते हैं दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मार्केट में शेयर 230 रुपीज के आसपास का चल रहा है. इफ यू से यस हम आपसे सिर्फ 130 लेंगे, बाकी 100 रुपीज हम लगाएंगे. तो एम्प्लॉय को भी एडवांटेज है कि उसको बाजार से शेयर कम प्राइस पे मिल रहा है. तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. तो उस स्कीम में जितने पैसे कंपनी अपनी तरफ से इन्वेस्ट करती है दिस इज नोन एज शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. तो आप अगर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपने बोला हाँ हमको 100 शेयर चाहिए, मार्केट में शेयर का प्राइस 230, 240, 210 कुछ भी हो, आपको 130 देना है. रिमेनिंग कंपनी विल पे ऑन योर बिहाफ. समझ में आ गया? अभी कंपनी ने पेमेंट किया नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. समझ गए? चिल्ड्रन हर्ड वेल? यस सर. चलिए सो डू मार्क द होमवर्क फ्रॉम द कंसर्न बुकलेट. चलिए यस सर. नेक्स्ट चिल्ड्रन ये क्वेश्चन आपको पार्ट ए में मिलेगा अपने पेपर में, इधर IC और CBSE. मैंने तो थोड़ा ज्यादा ही लिखा हुआ है, बट योर सिलेबस इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस मच चिल्ड्रन. सिर्फ आपको शेयर कैपिटल शो करना है बस. डायरेक्टली सीइंग टू द क्वेश्चन. कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई लेजर नहीं, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं, सीधे बैलेंस शीट. ओके चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे.